Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. And yes, I am back with a new video, and we also have a new setup. So before we start with the video and talk about the video, I want to tell you कि हम इस वीडियो को मिक्स लैंग्वेज में रखने वाले हैं guys. Yes, we will be talking in Hindi and English. हम दोनों ही लैंग्वेजेस में बात करेंगे because I feel that a lot of things are well explained for the Indian audience and the Desi audience, the Asian audience, हिंदी में. ठीक है, जो लोग उर्दू से भी रिलेट कर पाए वो भी वीडियो को आई थिंक समझ सकते हैं. ओके, ये वीडियो है आपके लिए जुलाई 2025 prediction that how will be July for all of you, whether whatever your zodiac is, it doesn't matter. This is not a zodiac video, this is a जुलाई थीम वीडियो. ओके, कि जुलाई की थीम क्या है. ऑलराइट, हम इसमें एक थीम निकालेंगे कि जुलाई 2025 की थीम क्या है. देन वी विल क्लैरिफाई इट विथ the tarot cards, and if needed we'll explain them also, we'll clarify them also with tarot cards. उसी के साथ में हम आपके लिए कुछ आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस भी निकालेंगे, एंड we will end the video with the postcards from the spirit. So this is going to be a very unique video and a very exciting video, so I would request you people to please do watch it till the end. And if you like my video, you can subscribe to the channel and like this video, and you can share your views, your feelings in the comment section. I will really appreciate it. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपनी मन की बातें, कुछ भी फीडबैक देना चाहें इस चैनल के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू चैनल एंड इट इज़ अ ग्रोइंग चैनल. आने वाले टाइम में आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दे विल नॉट सी दिस वीडियो. So this stage really means a lot to me. This phase of this YouTube channel is very important for all of us. So let's start with the video, and we'll be checking that what is the theme of July 2025. By the way, ये एक नया setup है of the cards, and I'm waiting for another set of my cards that I have been waiting for because I ordered them long back for my YouTube audience specially. मैं अभी तक, oh my god, energies are so high. I'm really sorry. Okay, I think cards are telling me कि पहले मुझे निकालो, उसके बाद हम बातें करेंगे. All right, let's do that only then. Let's see what is the theme for July 2025 for all of you, whoever is watching, irrespective of the zodiacs. जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा उनके लिए है ये जुलाई का थीम. All right. Feather. This calling card from the unicorns tells you they are near you. All right. So we have a theme which is feather. I think it means that this month is going to be very light. All right. This month is going to mean a lot to a lot of us. Okay. And हम इस एनर्जी में ही जाना चाहते हैं इस मंथ में. वी वांट टू एंटर दिस मंथ with a feather like energy. Okay, when you choose this card, it is a sign from the unicorns that they have a message for you. So look for a sign from them and know that they are assisting you. Affirmation for you is, I look for a message from the unicorns today. आई फील कि जुलाई की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लाइट होने वाली है, एयरी होने वाली है, एकदम फ्रीडम. जैसे हम कहते हैं फ्रीडम वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है व्हेन आई सी दिस कार्ड, व्हेन आई सी द पिक्चर ऑफ दिस कार्ड. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी लोग अपने लाइफ में एक फ्रीडम ढूंढ रहे थे, यूनिकॉर्न्स उस फ्रीडम की तरफ आपको लेके जाएगा जुलाई 2025 में. एंड आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हैं. यू विल फील सो हैप्पी. आपको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी कि आपको लगेगा कि ये एक्सपीरियंस तो मुझे कभी हुआ ही नहीं. कायरा, आप मुझसे कहोगे कि कायरा मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा नया जन्म हो चुका है.
मेरा एक पुनर्जन्म हो चुका है, मेरा नया जन्म हो चुका है. आई फील सो हैप्पी एंड लाइट, कायरा. And I also see a lot of greenery, so that is a very good sign. I think a lot of you will wake up early in July. I think आप सभी लोग चाहेंगे कि हम रोज सुबह उठें और बाहर गार्डन में जाएं, प्लांट्स के पास जाएं, पेड़ के पास जाएं, घास के पास जाएं, ठीक है. और हम वहाँ पर उस पूरे नेचर को एक्सपीरियंस करें, फील करें. आपका मन लगेगा ही नहीं इस जगह के अलावा कहीं और. आपको लगेगा कि रात को सोने के बाद कि सुबह उठते ही मुझे गार्डन में जाना है और मुझे घास पे बैठ जाना है या मुझे ऐसा ही एक व्यू देखना है. आई वॉन्ट टू सी अ सिमिलर व्यू लाइक दिस. आई वॉन्ट टू सी दिस. मेरी आंखें ऐसा सुबह सुबह का सवेरा देखने के लिए तरसती हैं रोज रात को. एंड आई ऑल्सो सी अ फ्लावर्स, वाइट यानी कि पीस. तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, वेदर भी वाइट, फेदर भी वाइट कलर का ही होता है ना. बर्ड्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाइट कलर के हैं. एंड यूनिकॉर्न भी वाइट होता है ऑफ कोर्स. एंड हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी सारे फूलों के साथ जुलाई में टाइम स्पेंड करेंगे. आपका मन करेगा खुद को फ्लावर गिफ्ट करने का, या आप चाहोगे कि आपको कोई फ्लावर दे आकर, ठीक है. चाहे वो व्हाइट कलर का हो, पिंक कलर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फ्लावर हो. यहाँ पे येलो भी है, यहाँ पे पिंक भी है, रेड भी है. So this month really feels very very nice, full of light energies, full of white colors. I think आपको white color पहनने का भी बहुत मन करेगा, या फिर आपको मन करेगा कि आप एक feathers का collection बनाओ, और आप ऑलरेडी फेदर्स का कलेक्शन बनाते हो एंड यू रियली एंजॉय इट, एंड आपको सडनली एक वाइट कलर का भी फेदर मिले. ऐसा भी बहुत हाई चांसेस है. फॉर सम ऑफ यू आई वुड से कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो कि आप किसी चिड़िया को, किसी बर्ड को फ्रीडम दिला सको, ठीक है, केज से, तो बहुत ही अच्छा होगा. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ गुड बिगिनिंग्स, और काफ़ी आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस निकलेंगे आने वाले सालों के लिए आपके लाइफ में. इट विल हेल्प यू विद अ लॉन्ग टर्म थिंग. ऑलराइट, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल होता है तो. सो दिस इज द थीम ऑफ जुलाई, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. लेट्स सी विद द कार्ड्स, विद द टैरो कार्ड्स. So this month really feels very very nice, full of light energies, full of white colors. I think आपको white color पहनने का भी बहुत मन करेगा, या फिर आपको मन करेगा कि आप एक feathers का collection बनाओ, और आप ऑलरेडी feathers का collection बनाते हो एंड यू रियली एंजॉय इट, एंड आपको सडनली एक white color का भी feather मिले. ऐसा भी बहुत हाई चांसेस है. फॉर सम ऑफ यू आई वुड से कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो कि आप किसी चिड़िया को, किसी बर्ड को फ्रीडम दिला सको, ठीक है, केज से, तो बहुत ही अच्छा होगा. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ गुड बिगिनिंग्स, और काफ़ी आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस निकलेंगे आने वाले सालों के लिए आपके लाइफ में. इट विल हेल्प यू विद अ लॉन्ग टर्म थिंग. ऑलराइट, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल होता है तो. So this is the theme of July, and now let's start with the reading. Let's see with the cards, with the tarot cards. Okay, let's see what is coming up with the month of July for all of you. आप जुलाई के महीने में 2025 में क्या चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What can you expect in the month of July? Wonderful. So आप इस मंथ को स्टार्ट कर रहे हैं 6 of Wands के साथ. यू आर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विद अ वेरी गुड नोट. दैट इज रियली अमेजिंग गाइस. And you are ending the month with the High Priestess, which is also amazing because basically आप अपने लाइफ को पूरा रॉक बॉटम शेक करने वाले हैं, और जुलाई अपने आप ही आपके लाइफ में एक रॉक बॉटम शेकअप लाएगा आपके लाइफ में. बट इट विल नॉट फील वेरी हैवी बिकॉज यू रिमेंबर हमारे पास यहाँ पे क्या कार्ड आया है कि जुलाई का मंथ का थीम क्या है आपके लिए? फेदर. काफ़ी लाइट होगा, और आपको वो एक लाइट एनर्जी की तरफ लेके जाएगा, एक हल्केपन की तरफ लेके जाएगा,
हल्कापन इन द सेंस के आपके लाइफ में जो एक बोझ है उस बोझ को निकालेगा ये शॉकअप, ठीक है। सो यू विल बी एंटरिंग द मंथ with an energy of victory overcoming something, क्योंकि पिछला जो 6 महीना है आपका बीता, स्पेशली जो जून का मंथ बीता है, वो आपको किसी चीज में अचीवमेंट दिया है, इसने आपको अचीवमेंट दिया है किसी चीज में, और यू हैव ओवरकम समथिंग। इट कुड बी एन एडिक्शन, इट कुड बी अ लाइफस्टाइल, इट कुड बी अ हैबिट, इट कुड बी योर प्रॉब्लम्स, इट कुड बी अ ब्लॉकेज, कुछ भी हो सकता है। एंड आप इस एनर्जी में जो एंटर कर रहे हैं इस टाइम पर जुलाई में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप अपने प्रॉब्लम्स को रूट लेवल पर सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है, और मे बी सम ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, that now I want to resolve things from the root level so that I do not repeat any pattern. All right? So that is also a very good thing here. Hmm? Um, I also see you not getting pessimistic in life. I see you being very, very optimistic. I see you being very, very good. I see you focusing on what is working out rather than focusing on what is not working out. मैं आपको देख रही हूँ कि आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए काम कर रही हैं चीज़ें, ना कि वो चीज़ें जो आपके लिए काम ही नहीं कर रही हैं। अब आपने तय कर लिया है कि अब आप उन चीज़ों पर फोकस नहीं करने वाले जो आपके लिए काम नहीं करती। ओके, योर फोकस इज कि मुझे उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो मेरे लिए काम करेंगी हमेशा, ठीक है। या फिर अभी तक आपने शायद लाइफ को एक ऐसे नज़रिए से देखा था जिसने आपको लाइफ में बहुत खुशियाँ नहीं दी, या फिर आपको वो आउटकम नहीं दिए जो आप चाहते थे या जो आप डिजर्व करते थे। अब आप अपने तरीके बदलने वाले हैं। यू विल चेंज योर वेज, यू विल नॉट रिमेन लाइक एन ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू हैव एक्सेप्टेड कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद को बदलना है। बिना बदलाव के हम उस लाइफ को नहीं अचीव कर पाएंगे जो हम डिजर्व करते हैं, एंड यू आर समवेयर अवेयर ऑफ इट, सो यू विल वर्क अपॉन दैट। सम ऑफ यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन योर हेल्थ अ लॉट। आप लोग मुझे अपने हेल्थ की तरफ फोकस करते हुए बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो सी यू वेरी कॉन्फिडेंट। इट्स नॉट लाइक आप अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं तो आप अपने हेल्थ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। यू आर नॉट इनसिक्योर ऑफ हाउ यू लुक, बट यू नो दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको पता है कि आपको ज़रूरत है, इसलिए आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं, ना कि इसलिए क्योंकि आपको किसी ने कह दिया या फिर आपको किसी ने ऐसा फील करा दिया कि आपको अपने हेल्थ पे काम करना चाहिए। तो आपकी वो एनर्जी वहाँ पर डल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप को शर्मिंदगी है अपने आप पे। आपको अपने आप पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बट आपको पता है कि आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, तो आप अपने पे काम करेंगे। एंड आई ऑल्सो सी यू कि आप थोड़ा-सा लेज़ी हो सकते हैं, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती हैं जहाँ पर आपको लेज़ीनेस करने का मन करे, बट व्हाट इज़ एडवाइस्ड टू यू इज़ कि आप लेज़ी ना हो। ओके, दैट इज़ एडवाइस्ड टू यू। आई सी यू कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ इमोशंस। आई सी यू बीइंग वेरी इमोशनल। शायद आप बहुत खुश होगे, और अच्छी बात है, मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग खुश हो अपने लाइफ में। आई वांट टू सी यू पीपल हैप्पी, एंड आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। आई सी यू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ जुलाई, और मे बी यू विल रिसीव अ लव ऑफर, or maybe someone will propose you, to date you, to get in an intimate relation with you, or to get in a relationship with you. Some people will come up with an offer to you, and they really are interested in you. They want to go ahead with you in a connection. Some of you can expect a long term connection, a long term alliance, because they intend to go forward with you in life. They're not looking for something temporary, they're looking for something long term, something solid. Okay, it's not like that it's just an attraction. Yes, they are attracted, but they are so much in love with you, or realizing that they can love you so much, or you guys can have an amazing relation. देखो ये होता है ना, बात करते करते मैं लैंग्वेज में ऐसे शिफ्ट कर जाती हूँ। तो उनको एहसास होगा इस चीज़ का कि आप दोनों एक बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। इसीलिए शायद आपको कहीं से कुछ अच्छे खासे ऑफ़र्स आ सकते हैं। कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, एंड कुछ लोगों का एक ऐसा रिलेशन स्टार्ट हो सकता है जो इनिशियली ना लगे कि ये कुछ लॉन्ग टर्म जाएगा, बट मे बी अगर आप इसमें अच्छे सीड्स डालेंगे, सही सीड्स डालेंगे, ठीक है? तो आप अगर उससे पौधा, जैसे हम पौधे को बड़ा करने के लिए करते हैं कि हम उसमें
सीड्स डालते हैं, उसे अच्छे से पानी देते हैं, धूप देते हैं सफिशिएंट अमाउंट का, है ना, ताकि वो आगे चल के एक पेड़ बने या अच्छा पौधा बने। तो अगर आप उसमें वो सही चीज़ें करते हैं ना, तो शायद आप उस रिलेशन को आगे चल के एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में भी बदलते हुए देखेंगे। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत गाइड करने वाला है। यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ गाइडेंस, अ लॉट, आई मीन मैं जितना बोलूँ अ लॉट उतना ही कम है। इतनी ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलने वाली है यूनिवर्स से। यूनिवर्स विल बी विथ यू। यूनिवर्स इज लाइक, यू हैव माई बैक, डोंट वरी, ओके। मैं आपको पूरा बैकअप दे रहा हूँ, मैं आपको पूरा बैकिंग कर रहा हूँ, बस आगे बढ़ते जाओ। दे वॉन्ट यू टू गो फॉरवर्ड, दे डोंट वॉन्ट यू टू सिट बैक विदाउट एनी रीजन या फिर बिकॉज ऑफ एनी डीमोटिवेशन। अगर कोई चीज़ आपको डीमोटिवेट करती भी है या आपके अंदर के लेजीनेस को जगाती भी है, तब यूनिवर्स आपको एक मौका देगा कि नहीं चलो कम ऑन उठो, अभी टाइम नहीं है इसका, ठीक है। बहुत बैठ लिए, बहुत लेजीनेस दिखा लिया और बहुत इग्नोर कर लिया और बहुत अपने भी हिसाब से कर ली चीज़ें। अब कुछ चीज़ें मेरे भी हिसाब से कर लो, जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूँ। सो दे वॉन्ट यू टू टेक एक्शन एंड इन अ वेरी गुड डायरेक्शन, और इन अ डायरेक्शन विच विल सर्व यू। तो यूनिवर्स भी आपके साथ, आपके प्लान के साथ तालमेल बना रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि आप भी समझ गए हैं कि आपको भी यूनिवर्स के प्लान के साथ एक तालमेल बना के चलना पड़ेगा। जैसे कि एक स्कूटर चलाने के लिए हमें दो पहियों की ज़रूरत होती है, या फिर जब तक गाड़ी में चारों पहिए नहीं लगे होंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तब तक जब तक आपका प्लान और यूनिवर्स का प्लान सेम नहीं होता, आप दोनों एक मिड पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप और यूनिवर्स साथ में मिलके इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एंड ये रियलाइजेशन आपको भी है, और अगर नहीं थी तो अब ज़रूर हो जाएगी जुलाई के मंथ में, दैट आई कैन सी फॉर श्योर। एंड आई सी यू टेकिंग एक्शन इन जुलाई फॉर योर सेल्फ। एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैशन भी होगा। मे बी आप कुछ ऐसी चीज़ करोगे जो बहुत ही ज़्यादा पैशन से भरी हुई हो आपके लिए, या फिर अपने पैशन को फॉलो करोगे, और या तो फिर आप इतना पैशन के साथ उस काम को करोगे कि आप श्योर हो जाओगे कि मुझे तो इस चीज़ में सक्सेस अब मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। एंड यूनिवर्स भी आपको इस चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर आपको रियलाइज करवा रहे हैं कि दैट यू रियली नीड दिस एंड यू वांट दिस, यू ऑल्सो नो इट। आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस चीज़ के लिए, आप भी चाहते हैं इस चीज़ को होना। एंड आई सी यू, बहुत ही अच्छी चीज़ ये दिख रही है मुझे यहाँ पे, अगर आप लाइन से देखें, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देगा, आपके अंदर खुद भी उस चीज़ को करने के लिए डेडिकेशन और पैशन आएगा। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि आपका इंट्यूशन भी आपसे कनेक्ट करेगा और आप अपने इंट्यूशन को समझ पाएंगे। एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस लैक एनर्जी। आप अपने आप को अब कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं, आप अब अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं देखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं बहुत बहुत हो चुका, अब मैं नहीं चाहता, अब मैं नहीं चाहती, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइफ से बाहर निकलूँ, मैं अपने आप को बदलूँ, मैं अपनी लाइफ को बदलूँ। एंड आपको पता है कि कमी आप में थी, जिस पर अब आप वर्क कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ों में कमी थी, हर इंसान में कमी होती है। एंड इस चीज़ का एक्सेप्टेंस होना है, फिर इस चीज़ को मानना कोई कमज़ोर इंसान की निशानी नहीं होती। ये चीज़ आप लोग आज मुझसे प्लीज़ सुन लीजिए। ये मत सोचिए कि कायरा, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम तो कमज़ोर हो जाएँगे ना, लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, लोग हमें गलत समझेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग ये देखेंगे कि आपने अपने अंदर के वीक साइड को समझा और अब आप उस पे वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। मे बी आज ना करें, बट कल ज़रूर करेंगे। And a lot of you will work upon your abilities. Okay, I see you working on your psychic abilities. I see you being connected with yourself, motivating yourself and others also. Or maybe a lot of you are already tarot readers and are continuing your tarot journey or astrology journey, and you are working on your spiritual life, your psyche, and you are helping people. या फिर आप अपने आप को इस लेवल का बना देंगे कि लोग आपको देखकर, आपसे इंस्पायर होकर अपने लाइफ में अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे, लाइक अ वेल लर्नड पर्सन। सो दैट इज़ वॉट विल हैपन टू यू इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बट मुझे एक ऐसी भी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांगली कि ये जो एनर्जीज है ना जुलाई की, ये जो एक्सपीरियंस है ना जुलाई का, ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होगा जो लोग अपने लाइफ में किसी चीज़ में फंसे हुए थे बहुत पहले,
या रिसेंटली इस साल के मे बी बिगिनिंग में, या वो किसी पैटर्न को नहीं तोड़ पा रहे थे जिस पैटर्न में वो फंसे हुए थे, जिस लूप में वो फंसे हुए थे। एंड उन्होंने काफ़ी साल लग गए उनको, पिछले मे बी 4-5 साल से वो, या 10 सालों से किसी पैटर्न में फंसे थे एंड वो निकलना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी किए बट वो कर नहीं पाए, ठीक है, वेरियस रीजंस की वजह से। एंड इस साल फाइनली उन्होंने कई चीज़ों को एक्सेप्ट किया, अपनाया और उन्होंने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप पर वर्क सिर्फ जून में कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि आप अपने आप पे वर्क सिर्फ जुलाई में करेंगे। आपने इसकी शुरुआत इस साल के बिगिनिंग में ही कर दी थी। काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों ने समझ लिया था कि यार 2025 वो साल होगा जिसमें मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, जिसमें मेरी लाइफ में बदलाव आना है, एंड इसको तो अब मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन ने आपको ये मैसेज दे दिया था कि मैंने बहुत बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को होने से रोका है, पर शायद इस बार मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक नहीं पाऊंगा। और ये चीज़ की आभास आपको बहुत पहले ही हो चुकी थी, ऐसा नहीं है कि अभी हुई है। इस चीज़ का आभास आपको पहले भी हुआ है, और अब सिर्फ इतना फ़र्क है कि पिछले 6 महीने से लेकर अब तक में, कि अब आप इसको स्पीड अप कर देंगे। ये सारी चीज़ें जो अभी तक एक अच्छी स्पीड में नहीं हो रही थी, अब होंगी। आपने जून में क्लोजर दे दिया जो आपको देने की ज़रूरत थी, और अब उस क्लोजर को देने के बाद इस 6 मंथ्स का साइकिल, क्योंकि देखिए 6 मंथ्स भी बहुत ही अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है लाइफ में एक अपने आप में एक बदलाव लाने के लिए, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, ठीक है, फैमिली लाइफ में हो, या हमारे अंदर हो, ठीक है, या हमारे हेल्थ में हो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, एंड इट इज़ अ रियली गुड थिंग कि आप अब अपने लाइफ में हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वर्क करने वाले हैं। वेदर इट्स अ लव लाइफ, वेदर इट्स अ सेल्फ लव कॉन्सेप्ट, वेदर इट्स लविंग योर पार्टनर, वेदर इट्स लविंग योर फैमिली, वेदर इट्स लविंग योर सेल्फ, और वेदर इट इज़ प्रायोरिटाइजिंग योर मनी एंड योर स्टेबिलिटी। आप सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे, या फिर जिन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप उस पे फोकस करेंगे। I will. I don't think that I need to clarify any of the cards, so I'm not clarifying it. And I will now check out the messages from the Archangel Michael for all of you. This is a really, let's see that what is the message from the universe. What does Archangel Michael has to say to you? Archangel Michael, आपको क्या guidance देना चाहते हैं? Let's see that. What is the guidance for you from Archangel Michael? Okay. Have confidence. My prayer. Archangel Michael, please lend me your courage and fortitude. Help me realize that I am one with all that is divine wisdom, strength, love, creativity, abundance, and health. Allow me to feel confident and peaceful about myself in all ways. सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू फॉर योर सेल्फ, फॉर द, यू कैन से सम वॉट इट इज़ योर थीम ऑल्सो, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो गाइडिंग मैसेज फॉर यू फ्रॉम आर्कएंजल माइकल कि आपको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने लिए। दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू फॉर योर सेल्फ। बिना कॉन्फिडेंस के आप लाइफ में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, एंड आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर अब तक नहीं आया तो आएगा, ज़रूर आएगा। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आप रखिए कि कॉन्फिडेंस आएगा। जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, वो भी अपने आप पर वर्क करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करेंगे जुलाई के मंथ में। ओके,
This card serves as a talisman to raise your self confidence. Archangel Michael has been trying to reassure you that you have the strength, power, and skills that are valuable to God's plan of peace. Michael is protecting you while you shine your bright light. Listen to your intuition and act with aplomb. In relationships, your self assurance attracts healthy people to your side. It also triggers respect in others as you are falling asleep each night. Ask Archangel Michael to help raise your confidence. You'll wake up feeling love and compassion for yourself and others. Other possible meanings are: have confidence in your plans and ideas, tune into your intuition as it's right on target, trust the person you are inquiring about, have faith that you are on the right path, know that your financial and other needs are being met now and in the future. Amazing. I think it is a रीअश्योरेंस फॉर यू ऑल कि आप लोग एकदम सही रास्ते पे हैं। जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है एंड अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए एक साइन है कि आपको इन चीज़ों को अपने लाइफ में करना भी चाहिए और आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को आप करेंगे भी। दैट इज़ अ गुड थिंग एंड आप लोग खुद को भी प्यार करेंगे इस बीच में, इस मंथ में स्पेशली, एंड जो आपके आसपास हैं, आपकी फैमिलीज, आपके अपने या फिर लोग। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग आपके कॉन्फिडेंस को भी एडमायर करेंगे, दैट हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर कैरिंग योर सेल्फ. So it is also going to be a very plus point for you. Okay, now let's close off this reading with the postcards from the spirits. All right, this is also a lengthy writing in this, बट ये बहुत ही अच्छे होते हैं. यू विल लव इट, आई एम श्योर. आप देख सकते हैं इनका प्रिंट भी कितना अच्छा है, एकदम टिपिकल पोस्ट कार्ड जैसा, जैसे कि पहले के ज़माने में बनता था ना. दिख रहा है एग्जैक्टली तो ये वैसा ही है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. मैंने इससे बहुत रीडिंग्स की हैं, पोस्ट कार्ड से लोगों को बहुत मैसेजेस दिए हैं एंड आई एम श्योर ये आपको भी एक अच्छा गाइडेंस देगा. अच्छा, ये इंग्लिश में होगा तो मैं आपको इसे इंग्लिश में पहले पढ़ूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. ठीक है, बट इसे आप इंग्लिश में भी सुनकर समझने की कोशिश करिएगा. जो हिंदी ऑडियंस है उन लोगों के लिए मैं हिंदी में इसका मीनिंग शॉर्ट में आपको बता दूंगी. ऑल राइट. ओके, आई थिंक दो मैसेजेस आना चाहते हैं तो मैंने दोनों ले लिए हैं. अक्सर मैं ऐसा करती नहीं हूँ बट आज हम करेंगे क्योंकि पोस्ट कार्ड्स खुद से सामने से आ रहे हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते. ओके, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट कार्ड. Dear you, there is only one you, and you have a unique place in the universe. Sometimes situations come up that challenge you to be an authentic, and that means you have to be fully yourself and let go of being what you think others may want. Now is not the time to conform to other people's standards or expectations. Be proud of who you are and be courageous. Stand tall in your convictions. Being yourself is a powerful statement and will only lead you to success and ultimately happiness. Don't compare yourself to other people. Want what you have, choose what your heart wants, and know that your purpose is yours alone. No one else can claim your magic, nor take it away. When you place authenticity and originality high on your list of priorities and give them a prominent place in your awareness, extraordinary things happen. Your life is a beautiful one. Love you always and forever. दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को अपने आप को नहीं खोना है, आपको अपने आप से कनेक्टेड रहना है, आपको अपनी रियल पर्सनालिटी पर फोकस करना है, चाहे लोगों को आपके पर्सनालिटी पर और आप पर विश्वास हो या ना हो.
उन्हें आपकी रियलिटी पसंद हो या ना हो, आपको खुद को दूसरों के लिए ना बदलने की ज़रूरत है, ना ही बेहतर बनाने की ज़रूरत है उनके लिए। आप जो भी करेंगे सिर्फ़ खुद के लिए करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके दिल को अच्छा लगेगा, जिसकी आपको ज़रूरत होगी, जो आप खुद से कहेंगे, आप वो करेंगे, ना कि जो दूसरे आपसे कहेंगे। एंड लोगों तक ये मैसेज भी जाएगा कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, आप उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि असलियत तो ये है कि जब आप अपनी ऑथेंटिक पर्सनालिटी में आते हैं और जब आप अपनी रियल पर्सनालिटी को दुनिया में दिखाते हैं, तो जितने भी लोग जो दूसरों को कॉपी करते हैं या जो फेक होते हैं या दूसरों को उनके ऑथेंटिसिटी का क्रेडिट नहीं देते हैं, वो लोग आपसे जलते हैं। वो आपको देखकर अपना रियलिटी देखते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको दिख जाता है कि एक्चुअली में तो वो हैं जो आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपको उनके स्टैंडर्ड को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड आपसे बहुत नीचे है और वो आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अपने ओरिजिनल सेल्फ में, अपनी रियलिटी में उनसे बहुत ऊपर है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों को प्लीज़ करने की, उन लोगों को मनाने की या उनके सामने वैलिडेशन की। ये आपको ध्यान में रखना है। वंडरफुल मैसेज। अनदर इज हियर फॉर यू। Dearest you, are you taking yourself and your problems too seriously? Maybe fear of the future is weighing on you. We would like you to take a little break from all that and start having fun. When you stop fixating on what has been making you heavy hearted, you stop, we get a chance to move some magic in your direction. We just need you to let go a little. Spirit needs some room and gets very inspired by your laughter when you have fun. When was the last time you got really loose, silly, and goofy? Maybe you need to go dancing or watch some very funny comedy to make you laugh. Or call the one friend you know will remind you how ridiculous and delightfully giddy you can be. You will return refreshed and renewed and ready to once again see the wild, see the wild also, see the world as less daunting, and you will be ready to receive in perfect timing the bounty that Spirit has for you. Don't you just love how much we care about you? The wild world. Once again, see the wild world. Okay. सो बेसिकली जो भी लोगों ने अपने आप को सेलिब्रेट करना, अपने आप को खुश रखना छोड़ दिया है, हंसना छोड़ दिया है, भूल गए हैं कि हंसी क्या होती है, अब वो टाइम आ चुका है आपके लिए कि आप जुलाई 2025 से वापस से खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए चीज़ों को करना शुरू करें। लाइफ की प्रॉब्लम्स को इतना तवज्जो देते देते आप भूल चुके हैं कि लाइफ में खुश रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल तो वैसे भी किसी के भी जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। आपकी नियति आपको किस उम्र तक ज़िंदा रखेगी, वो सिर्फ़ समय बताता है। और जब वो समय आ जाता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि अभी तक तो हमने लाइफ़ को जिया ही नहीं था। तो यही याद रखिए कि लाइफ़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है एंड हम यहाँ पर इस प्लैनेट पे कब तक के मेहमान हैं, कोई नहीं जानता। बट जब तक के लिए भी हैं, हम लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। वो प्रॉब्लम्स तो कभी नहीं ख़त्म होंगी, बट हम साथ ही साथ लाइफ़ को जिएँगे, एन्जॉय करेंगे, हँसेंगे, हँसाएँगे और ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमें हँसा सकें, जो हमें याद दिला सकें कि लाइफ़ में सिर्फ़ प्रॉब्लम्स या फिर दुःख नहीं होता। लाइफ में खुशियाँ भी होती हैं और सॉल्यूशंस भी होते हैं, और जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं होते, उन पर कभी-कभी हँस भी दिया जाता है। तो इसी बात पर आप किसी अच्छी कॉमेडी मूवी को देखिए जो आपको पसंद हो, पुरानी, नई। डांस करें, अपनी हॉबी को फ़ॉलो करें, अपने पैशन को फ़ॉलो करें। भले ही 1 मिनट के लिए करें, बट करें ज़रूर। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो व्हिच वाज़ वेरी, वेरी अमेज़िंग। आई होप कि आप सभी लोगों को जुलाई 2025 का ये रीडिंग बहुत अच्छा लगा होगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोग
इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो के साथ रेजोनेशन फील किया, आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए है। एंड आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में और आपको ये करने की ज़रूरत है। That was all for your video, guys, and now I'll see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, and God bless.